for the benefit of humanity. With over 4 million members, IEEE creates an environment where members collaborate on technologies, from computing and sustainable energy systems to aerospace, communications, robotics, healthcare, and many more. IEEE also includes a global network of IEEE members and volunteers dedicated to promoting women engineers and scientists and inspiring girls all around the world to follow their academic interests in a career in engineering or science. IEEE was rated as one of America's best mid-sized employers in Forbes in 2018. IEEE has been certified as a great place to work. IEEE received the When Work Works Award in 2016. It is the trusted voice for engineering, computing, and technology regarding information around the globe. IEEE VIT comes under the Bombay section. We are dedicated in conducting workshops and seminars on various domains. Adding to the accomplishments, IEEE VIT has captured the IEEE Regional Exemplary Student Branch Award for 2020. We have our main flagship events, IRIS and Voyager. Voyager will be soon coming up in March. We also conduct many such great events throughout the year, which include competitions, seminars, and IEEE Day. All of these are celebrated with great enthusiasm at IEEE VIT. So now let's come to what you all are here for, our flagship event, IRIS. So what is IRIS? IRIS stands for Inspire, Resonate, Integrate, and Succeed, which means to get inspired by the speakers, resonate with their thoughts, integrate them in our souls, and succeed in our lives. A series of inspirational talks resonating powerfully within the audience, integrating their advice and thoughts to work towards success is here now. IRIS 21 was a huge success where the speakers stimulated our minds with their inspirational talks. The speakers for IRIS 21 included the likes of Mr. Alcatraz Day, an author, biker, and life coach. He's the author of 3 Amazon chartbusters. He rode a mountain bike from Kanyakumari to Kashmir under 120 hours. Our second speaker was Dr. Raja Gopala Chidambaram, an Indian physicist. He was the prestigious Padma Shri and Padma Vibhushan. He coordinated the preparations for Pokhran 1 and 2, known for India's nuclear weapons program. Our third speaker last year was Mr. Shonit Ladhani, an entrepreneur and angel investor. He is the president and CEO at AIE SEC Mumbai. He featured in Brain Feeds 30 under 30 entrepreneurs of India. Mr. Valmiki, our fourth speaker, is an Indian hockey field player, the only Indian hockey player to play German Hockey League for 8 years consecutively. He played the 2014 World Cup for India. It truly made us believe that in order to succeed, your desires for success should be greater than your fear of failure. And now we are here again, yet with another series of resonating inspirational talks. I will now start my introduction for today's speaker with a beautiful quote in Hindi. शहर में छाले पड़ जाते हैं जिंदगी के पाँव में सुकून का जीवन बिताना है तो आ जाओ गाँव में Today we are proud to have a guest within us who truly knows the meaning of these words, a person that has invested his life in social work to improve the lives of his people, a person that has first-hand experience of the problems that our villages face and has the knowledge to eradicate them from their roots. He is the farmer sarpanch of Hivre Bazar, a gram panchayat in Ahmednagar district of Maharashtra, India. He is also the executive director of Maharashtra state government's Model Village Program, a member of the National Level Grameen Reform Committee, and has tie-ups with Oxford, Stockholm, Tokyo, and London universities for research on water management. His village Hivre Bazar in 2018 stands not only as a town that is self-sufficient in nearly every manner, but also a model for modern urban and rural governance. But things weren't always like this. Hivre Bazar had its own set of problems, major issues for years, ranging from a dearth of resources to poverty and a high migration rate. Our speaker's tireless efforts and never-ending struggle for the betterment of his village is what transformed Hivre Bazar from an impoverished village to a green model village. In 2020, Sir received the Padma Shri honor from the Government of India for his contribution in the field of social work. The Hivre Bazar Gram Panchayat, as its Sarpanch, won the first national award, and Sir has received many awards since then. First International CSR Award, Amazing Indian Award by Times Now, and many more. Let us know about this extraordinary story of passion and desire for the people of his homeland from the person himself. Please join me in welcoming this national hero, Padma Shri, Sir Sir Padma Shri Sir 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 Sir.
Shri Popat Rao Pawar. May we hear from you, sir. The platform is all yours. ठीक है अभी हेलो हेलो Yes, sir, you are audible. आपकी आवाज आ रही है. Hello, sir. I think our speaker for today is facing some technical issues. Just give it a minute. We'll try to resolve it soon. The speaker is trying to rejoin. Kindly wait for the speaker to come and we'll start our session again soon. Sorry for the inconvenience. रीति अडचण येतेच नंतर मग हॅलो Hello, yes sir, you can start. हां
हेलो हेलो। यस सर, आपका आवाज आ रहा है। आ रही ना आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ ठीक। नहीं अभी कैसा है कि आंसर और क्वेश्चंस होगा या खाली टॉक? सर आप आपका टॉक दोगे थोड़े टाइम के लिए, एंड देन आपके टॉक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे थोड़े टाइम। ओके, 1 आवर, 1 घंटा चलेगा ना? यस सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आवाज आ रही ना ठीक से? यस सर, एकदम क्लियर है। हाँ, तो हम आज आयरिश यूनिवर्सिटी आरिड 20 और 22 का ये ऑनलाइन वेबिनार में हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक संवाद करने का मौका दिया है। अभी अभी राहुल जी ने हिवरे बाजार और मेरे बारे में आपके सामने तो वो सारा बैकग्राउंड रखा है। तो आज थोड़ा कनेक्टिविटी के कारण प्रॉब्लम था। आज भी गांव में थोड़ा कनेक्टिविटी का कभी कभी प्रॉब्लम आता है। तो मैं आशा करता हूँ आप में से कुछ लोग हिवरे बाजार आके गए होंगे या अपने गूगल पे हिवरे बाजार और हिवरे बाजार का जो काम है उसके बारे में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। तो आज यहाँ आपके सामने इतना ही मैं कहूँगा, जब मैं 11th-12th साइंस पढ़ाई कर रहा था तभी स्टेट स्कूल क्रिकेट कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। मैंने खेलना पसंद किया और साइंस छोड़ दिया। बाद में कॉमर्स ज्वाइन किया, एमकॉम तक पढ़ाई की। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी से मैं ऑल इंडिया भी रिप्रेजेंट किया मैंने क्रिकेट में, वेस्ट जोन विनर होके बाद में ऑल इंडिया चेन्नई गए। तभी ऑल ओवर इंडिया से कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज थी, उसमें हम फाइनल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हार गए थे। तो एक कहने का मेरा मकसद यही था कि एक ड्राउट प्रोन एरिया में हिवरे बाजार नाम का एक छोटा सा गांव, जहां हर 5 साल में 2 साल ड्राउट सिचुएशन होती थी और 95% लोग पलायन करते थे टू सर्च फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हालात थी। और लोकल लीकर ड्रिंकिंग प्रिपरिंग ये मेन इनकम सोर्स बना था। तो ऐसी सिचुएशन में मैं 89 में गांव आया, जब पढ़ाई के लिए बाहर था, स्पोर्ट्स और क्रिकेट के कारण बाहर था। लेकिन 89 में विलेज पंचायत इलेक्शन आ गया और इलेक्शन में जो गांव के यूथ थे उनका फोर्स ये था थोड़ा आप कुछ करो, क्योंकि 89 में गांव के हालात कुछ ऐसी इतनी बिगड़ी हुई थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर पनिशमेंट देनी है तो उनके ट्रांसफर हमारे गांव में की जाती थी, चाहे पटवारी हो, टीचर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, जो कोई भी। और एक तो खुद शराब पीने वाला या शराब पिलाने वाला चाहिए। ऐसे हालात में एक शराब की बोतल में एक लड़की की शादी बनती थी। इतनी खराब सिचुएशन, सरफेस रॉकी था, ब्लैक सॉइल देखने को नहीं मिलती थी और रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था। तो रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न के कारण अगर कोई गेहूं की रोटी खाएगा तो गांव का अमीर माना जाता था। तो ऐसी सिचुएशन में मैं गांव आया तो पूरा परिवार अपोज में था। खुद का अपना करियर देख, एक गांव के फ्यूचर की झंझट में मत फंसना। और ऐसे हालात में मैं डबल माइंड था, गांव या खुद का अपना फ्यूचर। तो परिवार वालों का यही फोर्स था कि तू लिखा पढ़ा है, अच्छे जॉब हाथ में है,
कस्टम, एयर इंडिया, स्पोर्ट्स के कारण। लेकिन कुछ गांव में घटनाएं ऐसी घटी तो मुझे वो पंचायत के इलेक्शन में अनअपोज तो हो गया, लेकिन सभी का फोर्स ये रहा कि आप सरपंच बन जाओ। तो मैं 89 में विलेज पंचायत प्रेसिडेंट बन गया, सरपंच बन गया। तो कुछ दिन के लिए गांव में नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था। किसी गांव के पंचायत लीडर ने एनवायरमेंट, वाटर कंजर्वेशन, सैनिटेशन, इसके ऊपर अच्छा काम किया है। उस वक्त तो गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी बहुत थोड़ी स्कीम्स थी, उसके आधार पर ही प्रोग्राम चला था। तो पहला जो सरपंच बन गया तो 6 महीने के बाद मैं गांव आ गया था। तो ग्राम सभा में सारे यूथ, महिलाएं, गांव के सारे किसान थे और सभी ने अपने अपने जो प्रॉब्लम से समस्या थी वो ग्राम सभा में रखी। किसी ने कहा क्या ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कुछ करना है। किसी ने कहा एग्रीकल्चर वाटर के प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई के प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम है, क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, रोड्स, सिविल सप्लाई, रेशनिंग का हो, ये बहुत सारी समस्या थी। उस वक्त तो मैं डर गया था, इतने सारे प्रॉब्लम, ये सॉर्ट आउट कैसे करने। लेकिन ग्राम सभा में प्रॉब्लम सामने आ गए, उसके ऊपर हम सिलेक्टेड लोग बैठे और विद इन 2 months उसके ऊपर सोल्यूशन भी हमने ढूंढा कि प्रॉब्लम तो है, तो सारे प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रायोरिटी बनाई ग्राम सभा में और नीड बेस्ड प्लान बन गया हमारा। पहली नीड यही थी कि पलायन को रोकना है, जो माइग्रेशन है टू सर्च फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशन थी। 90% फैमिली या 95% माइग्रेट होती थी, और ऐसी सिचुएशन में लोगों को गांव में ही रोजगार कैसा देना है, पानी की समस्या कैसे सॉल्व करनी है। तो इसके ऊपर हमने प्लान किया कि हम पहला जो टॉप टू बॉटम, रीच टू वाली कंसेप्ट से एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसा थोड़ा प्रायोरिटी बनवाई। और उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ सिलेक्टेड विलेजेस को उनको वो प्रोग्राम में प्लान करना था। तो उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया, उनको रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में सारा प्रयास होने की जरूरत है। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, ग्राम सभा बुलवाई और 93-94 में पहला प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ। उस वक्त तो 2 रूम में 4 क्लास चलते थे, 4 तक स्कूल था। तो स्कूल का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये काम हुआ। अगर बारिश आ गई तो स्कूल को छुट्टी देनी पड़ती थी, इतना खराब क्लासरूम और उसके हालात थी। तो ये शुरुआत हो गई पहली सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, सेकंड प्रायोरिटी, फिर हेल्थ, एजुकेशन, पावर सप्लाई, रोड्स, एग्रीकल्चर, वाटर। तो इसमें अगर सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम होगा तो बारिश के बाद रिचार्ज होकर वाटर लेवल बढ़ेगी, ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गई तो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ग्रीन पाउडर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए ग्राम सभा में कुछ डिसीजन हमने डिसिप्लिन के आधार पर लिए। पहला था जो प्लांटेशन होगा, ट्री फिलिंग को बैन करेंगे, कोई पेड़ रूट से नहीं काटेंगे। अगर लकड़ियां है, ब्रांचेस से थोड़ी सूखी हुई तो वो यूज करेंगे फायर वुड करके। नंबर 2, मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन, बनाना, उनको बैन कर दिया। देयर इज ओनली हाफ ऑफ एकड़ फॉर ग्रीन पाउडर। इरिगेशन पर्पज शुगर केन, बनाना, जो ज्यादा पानी वाली फसल है वो हमने बंद कर दी। नंबर 3, ट्यूबवेल को बैन कर दिया।
they use only for drinking water tube well, और irrigation purpose they use dug wells, open wells, और dug well का डेप्थ 50 फीट, उससे ज्यादा नहीं था, और ट्यूबवेल तो 200 फीट नीचे जाता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्यूबवेल है। और एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा पानी लिफ्ट करने के बाद ग्राउंड वाटर सिचुएशन ही खराब हो जाती है। इसलिए हमने गांव में कुछ 5 सूत्र को अडॉप्ट किया। जहां प्लांटेशन होगा वहां ओपन ग्रेजिंग बैन, वहां कंट्रोल ग्रेजिंग का प्रोग्राम किया कि पालतू जानवर अंदर नहीं जाएंगे। ग्रेजिंग एनिमल्स, इसके लिए स्टॉल फीडिंग का प्रोग्राम किया। नंबर 2, अगर जितना भी ग्रास कटिंग करना है तो 100 रुपीज पर सीजन ग्राम सभा में विलेज लेवल कमेटी जो है फॉरेस्ट की वहां जमा करेंगे, और रोजाना 1 हेड लोड काट के लेके जाएंगे। क्योंकि ओपन ग्रेजिंग के कारण एक तो जंगल खराब हो जाता है, और सबसे बड़ा लॉस सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी निकल जाती है बारिश के साथ साथ। इसलिए हमने वो प्रयास किया कि जंगल संरक्षण और सॉइल कंजर्वेशन, और इसके लिए ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसी वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त क्रांति की गोल्डन जुबली के आधार पर एक मॉडल विलेज प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। उस वक्त के मुख्यमंत्री जी थे सुधाकर राव नाईक। तो वो प्रोग्राम था कि अगस्त क्रांति के बेस पर किस तरह से हमें मॉडल विलेज का प्रोग्राम करना चाहिए। तो सब स्वतंत्र सेनानियों की मीटिंग थी, और उस वक्त अग्रणी स्वतंत्र सेनानी अच्युत रावजी पटवर्धन जी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था चलो गांव की ओर। जब तक गांव नहीं बनेगा, आत्मनिर्भर गांव ही भारत को बलशाली बनाएगा। क्योंकि ज्यादातर आबादी और ज्यादातर भूमि गांव में, वहां अगर अच्छी सुविधा मिले तो लोग गांव छोड़ के शहर नहीं आएंगे, पलायन रुक जाएगा, माइग्रेशन रुक जाएगा। ये उसका मेन थीम था। तो फिर रालीगांव सिद्धि में जो प्रयास अन्ना जी ने किया था, उसके आधार पर हर ब्लॉक में महाराष्ट्र के 355 ब्लॉक है, 355 ब्लॉक्स, उसमें एक एक मॉडल गांव बनाना। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 14 ब्लॉक से उसमें नगर ब्लॉक एक था, और हमारा नगर ब्लॉक में तो मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अन्ना जी से मिला, सभी कहा कि हमारा पिछले 4 साल से काफी अच्छा प्रयास गांव में चालू है, ओपन ग्रेजिंग, कुछ डिसिप्लिन से हमारे अच्छा प्रयास लोग कर रहे, श्रमदान, चराई बंदी, कुल्हाड़ बंदी, परिवार नियोजन, नशाबंदी, इस तरह से। तो वो 5 सूत्रों का ग्राम सभा में हमने अडॉप्ट किया। फिर उसका प्रपोजल बनवाया, गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी, और 95 to 2000 5 साल का प्लान बन गया, और वही 5 साल के प्लान के अंदर प्रोग्राम शुरू हुआ। और 5 साल का प्लान हमने विद 2 years टोटल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ हमारा, क्योंकि लीडरशिप पंचायत की थी, ग्राम सभा अच्छी भागीदारी थी लोगों की, साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी अच्छा सपोर्ट था। गांव में लोग श्रमदान कर रहे थे, डिसिप्लिन अच्छा था। इसके कारण 5 साल का प्रोग्राम हमें 2 साल में खत्म कर दिया, और हिवरे बाजार एक अलग गांव सामने आ गया। और उसी वक्त 93-94 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राउट प्राउन एरिया जितना ही है इंडिया का 52%, वहां सॉइल वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम करना था। तो उसके लिए गाइडलाइन बनानी थी। तो CH हनुमंतराव जो इकोनॉमिक्स थे, प्रोफेसर थे, उनके अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक कमेटी बनवाई, और वो पूरी कमेटी होरे बाजार आई। और जब उन्होंने गांव में हुआ प्रोग्राम देखा, और उसके बाद न्यूज़पेपर में आ गया कि हिवरे बाजार एक मॉडल गांव बना है। फिर ये शुरुआत हो गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि बिफोर 95 हमारी बेस लाइन है। 95 के पहले बहुत खराब हालत थी,
और 95 के बाद बदलाव आ गया। तो 95 में जो प्रयास हमने किया उसके कारण जहां 95 में 91 डगवेल से कुएं थे और ग्राउंड वाटर लेवल दिसंबर एंड को 100 फीट से ज्यादा नीचे चली जाती, सारे कुएं सूख जाते थे और ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम दिसंबर एंड की शुरुआत हो जाते थे। और जब आज 95 के बाद ये प्रोग्राम हुआ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, अभी 31 मई को ग्राउंड वाटर लेवल 35 या 40 फीट है, क्योंकि ट्यूबवेल को बैन कर दिया, मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को बैन कर दिया हमने, शुगर केन, बनाना, और इसके कारण ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इतना परफेक्ट हुआ और 95 से हम 5th से लेके 10th तक के स्कूल के बच्चे वाटर बजटिंग करते हैं। देश का पहला गांव है जहां 95 से रेनफॉल कितना हुआ, रिचार्ज कितना हुआ, रन ऑफ कितना है, ये ऑपरेशन कितना होता है और डगवेल में कुएं में कितना पानी आता है, उसके आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न बन गया। आज हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ओनियन, फ्लोरिकल्चर, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, पोटैटो और फ्लोरिकल्चर, इस तरह से हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है। आज पर कैपिटा जो बिफोर 95 800 रुपीज था, अभी वो मोर देन पर कैपिटा 60,000 से ज्यादा। और अभी जो सोशल और सामाजिक और आर्थिक संस्था जो गोखले इंस्टीट्यूट है पुणे में, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में 1-1.5 साल पहले एक निर्णय किया कि मेरी अध्यक्षता में जो महाराष्ट्र में 100 गांव में प्रोग्राम चल रहा है, तो बेस हिवरे बाजार, उसके आधार पर जो 25 विलेजेस मॉडल बन गए, उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। तो आज हिवरे बाजार का पर कैपिटा भी मिलियनियर, मोर देन 80 मिलियनियर से गांव है। इतना बदलाव आ गया। बिल्कुल ड्राई गांव था वो अभी ग्रीन बन गया, ग्रीन कवरेज है, मोर देन 10 लाख ट्री प्लांटेशन है और 95% सक्सेस है। अगर कहीं जंगल में आग लगती है तो हमारा ग्राम सुरक्षा नेटवर्क विद इन 30 सेकंड 900 मोबाइल का कनेक्ट है। मैं पोपटरा पावर बात कर रहा हूँ, जंगल में आग लग गई है और वहां आपकी मदद की जरूरत है, 30 सेकंड का एक मैसेज चला जाता है, तो विद इन 10 मिनट्स 100 यूथ जंगल में आ जाते हैं। कई लियोपर्ड भी, जो कि बिफोर 95 ह्यूमन माइग्रेशन था टू सर्च फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, और आज साउथ अफ्रीकन माइग्रेटरी बर्ड्स साउथ अफ्रीका से हमारे तालाबों के ऊपर आ जाते हैं। ये बदलाव आ गएगा। अब एक ऑक्सीजन टूरिज्म विलेज बन गया, जहां आउटसाइड से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है अप्रैल में, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल 35 या 40 फीट है। इसके कारण ग्रीनरी है। और हमने तो जो प्लांटेशन किया, शुरू में यूकैलिप्टस सुबाबल आ गया, ग्लेरिसिडी आ गया, लेकिन बाद में जब देखा हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी ग्रो करते हैं वही लोकल स्पीशीज हमने यूज की, नीम हो, शीशम हो, बांस हो, बांबू हो, या बेर हो, जामुन हो, कस्टर्ड एप्पल हो, और इसके कारण या बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, जो लोकल वैरायटीज और हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं, बस वही किया, और इसके कारण एक अच्छा जंगल भी तैयार हो गया। तो ये जो प्रयास है हमारा सस्टेनेबल रहा। समस्या तो हर गांव में है, हमारे गांव में भी आ गई थी, कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या कुछ, क्योंकि मैं थोड़ा शुरू में राजनीति में था, इंडिपेंडेंट में डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर भी बन गया था। 95 में मुझे असेंबली इलेक्शन में मौका आया था एमएलए बनने का, और उसी वक्त गांव में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी कि आपस में थोड़े लड़ाई झगड़े, इसका बैकग्राउंड ही आउटसाइड पॉलिटिक्स था,
क्योंकि यह अभी विधायक बनने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ गांव में इसे डिस्टर्ब कैसा करना है, उसके कारण थोड़ी समस्या आ गई। अब तब देखा मैं 68 की जो वेट था वो 56 हो गया था। जिस गांव में सारे लोग सभी की भागीदारी थी, गांव में ना शराब थी, ना लड़ाई, ना झगड़े, ना पुलिस वाला, क्योंकि 1984 में गांव में एक मर्डर केस हुआ था और 83 से 89 तक पनिशमेंट पोस्टिंग के हालात थे गांव में गवर्नमेंट सर्वेंट की। और 89 के बाद जब मैंने पंचायत में सरपंच बनने के बाद प्रयास किया तो गांव में जो बदलाव आ गया वो 96 तक बहुत अच्छी मूवमेंट थी। उस वक्त राजनीति दिमाग में थी, अवसर भी मिल गया था, लेकिन जब बाद में देखा कि पॉलिटिकल करियर करना है या गांव का फ्यूचर बनाना है, भाई इसके लिए मैंने थोड़ा बैठ के डिसीजन लिया, कुछ अच्छे फ्रेंड गांव के लोग और ग्राम सभा बुलवाई और निर्णय किया कि बस आज के बाद राजनीति नहीं करनी, खाली गांव तक सीमित। चाहे रिजर्वेशन आ गया तो डिप्टी सरपंच बनना, भी मैं डिप्टी सरपंच हूं, या ओपन निकला तो सरपंच बनने का। इसके पीछे मकसद ये कि हमारे देश में 247 विलेज पंचायत है पूरे भारतवर्ष में, 6.5 लाख गांव है हमारे देश में। ये गांव मॉडल बनने से नहीं चलेगा, हमें मूवमेंट बनानी, और मूवमेंट तभी बन सकती है एक एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट नेटवर्क सामने आ जाता है, क्योंकि एक एनजीओ एक गांव बनाएगी, एक कारपोरेट एक मॉडल दे देगी, लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम मूवमेंट बना सकती है। और एग्जाम्पल महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, जो स्वर्गीय अराराबा जिन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, पूरे भारतवर्ष का स्वच्छ ग्राम अभियान बन गया। महाराष्ट्र का कृष्णा खुरे विकास महामंडल आज भी सस्टेन है। महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करके लॉन्च हो गई। मैं ये इसलिए कर रहा हूं, और अभी अभी 2016 में महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था जलयुक्त शिवार, बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में उसमें भी आ गया। इससे जो प्रयास हमें करना है, इसके लिए लीडरशिप की जरूरत है, और वही प्रयास बाद में आमिर खान जी ने पानी फाउंडेशन लेके किया। जब सत्यमेव जयते आमिर जी ने बनवाई, तब सेकंड लास्ट एपिसोड उनका था वो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर, वो मेरे हिवरे बाजार गांव का था। जब 2016 में आमिर जी ने मुंबई उनके वर्ली हाउस बुलाया कि महाराष्ट्र के ड्राउट सिचुएशन में काम करना है, पानी फाउंडेशन कैसा चलना है, पूरे दिन भर डिस्कशन चल रहा था। सीओ सत्यजीत जी भटकल थे, डॉक्टर अविनाश पोल जी और 8-10 लोग थे। और उस वक्त गवर्नमेंट के साथ ही, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है तो मूवमेंट नहीं बनती, और उस वक्त आमिर जी सब देवेंद्र जी के साथ बैठे, मीटिंग हो गई। अब मुख्यमंत्री जी ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट सिस्टम सपोर्ट में आ गई, तो महाराष्ट्र में पानी फाउंडेशन की बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई। खुद आमिर जी और किरण राव जी हिवरे बाजार आके गए, पहले ब्लॉक जो 3 सिलेक्ट किए थे उनका ट्रेनिंग हिवरे बाजार में हुआ, कि जो प्रयास गांव में हमने किया, वाटर बजटिंग, डिसिप्लिन, और इसके आधार पर पानी फाउंडेशन का भी उन्होंने थीम लिया कि नहीं यही करना है। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो VSTF सोशल विलेज ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, जब देवेंद्र जी ने वो एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया, अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब वो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, और वो ट्रस्ट में CM अध्यक्ष है रतन टाटा जी, कुमार मंगलम बिरला जी, आनंद महिंद्रा जी, नीता अंबानी जी, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी, उसके साथ साथ आमिर खान जी उस कमेटी में, मैं भी वो कमेटी का एक मेंबर, और जो CM फेलो सिलेक्ट किए सारे, उनका ट्रेनिंग हिवरे बाजार में हुआ, और थीम हिवरे बाजार का ही था। इससे एक गांव बन गया। तो अनुभव से अपलिफ्टिंग, फिर आदर्श ग्राम स्टेट कमेटी का मैं एग्जीक्यूटिव
प्रेसिडेंट बन गया। हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में 5 या 10 मॉडल गांव बनाने, पानी फाउंडेशन, नाम फाउंडेशन, जलयुक्त शिवार, और ये मूवमेंट के कारण काफी अच्छा एक डेवलपमेंट का पाथ ट्रैक तैयार हुआ और इसमें भी रोल करने का अवसर मुझे मिला। एक गांव बन गया हिवरे बाजार, कि जिस गांव में अभी पावर्टी लाइन 0 पे आ गई। वैसे तो हमारे हिसाब से जो हमारी विलेज गाइडलाइन है इसके आधार पे 12 या 13 लोग आज भी पावर्टी लाइन के नीचे, लेकिन गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है इसके आधार पर हिवरे बाजार 0 है। अब कोई डिमांड नहीं करता पावर्टी लाइन का कार्ड दे दो। आज हिवरे बाजार में सब APL है। अभी जब गोखले इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आएगा तो मिरेकल हो जाएगा। रैंडम फैमिलीज नहीं ली हमने, तो 100% फैमिलीज का सर्वे हुआ इससे लास्ट 1-1.5 साल से, और जब वो सामने आएगा तो और अच्छा सॉइल लॉसेस, वाटर बजटिंग, उसके आधार पर क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि जो हिवरे बाजार का सक्सेस पाथ है वो यही है कि वाटर बजट बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न। आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं 78% वाटर आज शुगर केन को यूज किया जाता है, और आज हिवरे बाजार में शुगर केन नहीं है। 1/2 एकड़ ग्रीन पाउडर के लिए अगर 300 mm रेनफॉल है मिलीमीटर या 15 to 20 इंचेस, तो करीब 100%, रबी 70% और 30% समर सीजन का क्रॉप मिलता है। और ये लास्ट 95 से ये अनुभव, लोकल नॉलेज और इसके आधार पर हमने काम किया, तो आज एक हिवरे बाजार एक ग्रीन हाउस फॉस्फोरस विलेज बन गया, जहां ना पुलिस वाले की जरूरत है, ना लड़ाई, ना झगड़े। सबसे खुशहाल कौन है गांव में? तो वुमेन्स, लड़कियां। आज हम देख रहे घर से स्कूल और स्कूल से घर तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो हमारे गांव में जहां कहीं भी कुछ भी पड़ा है, जैसा कि स्टार्टर हो, इलेक्ट्रिक पंप हो या सोलर पंप हो, लेकिन चोरी नहीं होती, पुलिस वाले की जरूरत नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन है लोगों में। अब इसके कारण आज डेली, अभी कोविड के कारण बंद है, लेकिन डेली गांव में 500 या 600 विजिटर आ जाते हैं। आज तक मोर देन 100 कंट्रीज के डेलीगेशन हमारे गांव में आ गए। इंटरनेशनल चेयरपर्सन ऑफ यूनिसेफ करीबन 40 कंट्रीज के हेड को लेके आई थी। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटर फंड, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लोग, आज टोक्यो यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी हो, हमारे केस स्टडीज वहां पढ़ाई जाती है, बाद में पता चलता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पहले ही उनकी मन की बात की टॉक में हिवरे बाजार के ऊपर उन्होंने टॉक किया था। बायब की गोल्डन जुबली के अवसर पर जो बायब स्वर्गीय मनी भाई जी देसाई जी ने जो बनवाई थी एशिया की फर्स्ट एनजीओ, उनकी गोल्डन जुबली एस्टेब्लिशमेंट की, उसके आधार पर जब टॉक और जो ऑनलाइन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टॉक किया, उसमें वहां पर भी उन्होंने हमारे वाटर मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट का जिक्र किया था। हिवरे बाजार कोविड फ्री विलेज है देश का पहला, जिस गांव में मोर देन 65 पॉजिटिव थे, 18 क्रिटिकल कंडीशन में गए थे, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर। और जब 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हमने 6 टीम्स, 22 अलग अलग ग्रुप्स, 6 थीम और 22 ग्रुप्स, और हमारी कोविड फ्रंटलाइन टीम, टीचर्स, यूथ, डेयरी लोग, हेल्थ सब सेंटर के लोग, और इतना अच्छा प्रयास किया। 30 अप्रैल पे 0 आ गए, और आप सबको पता है अप्रैल में हालात, सिचुएशन देश के क्या थी। सोशल मीडिया के ऊपर
ऑक्सीजन बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, रेमडेसिविर नहीं है, और अंत्येष्टि करने हैं वहां लाइन लगी, सब डर था। तो हमने लोगों का डर निकाल दिया, मीडिया को बुलाया, स्टेटमेंट दिया कि हुर्रे बाजार 15 मई को कोविड फ्री हो जाएगा। तो सारी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी गांव में आ गई थी, बीबीसी तक सब लोग। अब जब देखा, क्या प्रयास किया, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के साथ हमने एक वीसी किया डिस्ट्रिक्ट में, सारे पंचायत कनेक्ट करके, और मैसेज दिया। 2 दिन वीसी चली और एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट हो गई। बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोन आ गया, फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी, ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहब जी, उन्होंने 2 दिन पूरी स्टेट की वीसी की डिवीजन वाइज। मेरा अनुभव, फिर आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और समारोह के लिए सेक्रेटरी ग्रामीण विकास। और इसके कारण महाराष्ट्र में भी काफी अच्छी मूवमेंट। अब 15 जून को पहला ऑफलाइन स्कूल हमने शुरू कर दिया। आज भी 240 दिन पूरे हो गए, 240 डेज कंप्लीट हो गए, स्कूल ऑफलाइन चालू है हमारे, और अभी एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई हमारी। क्योंकि एक है कि लीडरशिप, डिसिप्लिन गांव में, और इसके कारण पॉलिटिक्स नहीं आ गया, बाहर का इंटरफेरेंस नहीं, इसके कारण गांव में यह हालात है। क्योंकि कोविड के साथ ही हमें जीना है। डर के कारण अगर हम स्कूल बंद कर देंगे, तो आज ग्रामीण एरिया में हमने देखा कोविड में हमारी जो कितनी लिमिटेशन हमारे सामने, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण विकास में ऑनलाइन नहीं चल सकता है हमारा पंचायत भी, और स्कूल, हेल्थ और एजुकेशन में। लेकिन हमने जो नेटवर्क गांव में बनाया, लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाया कि डरो मत, पॉजिटिव भी आ गया तो क्वारंटाइन होना है। और इसके कारण शुरू में समस्या आ गई बहुत सारी, कुछ आउटसाइड सिटी से, मुंबई पुणे ठाणे से या जॉब कर रहे बाहर, वो गांव में आ गए, उनको क्वारंटाइन करने का फोर्स किया, तो थोड़ा टकराव भी हुआ था, लेकिन उनको ठीक से समझा दिया, बाद में मान गए, गांव में कोई दिक्कत नहीं आ गई। तो इसलिए हमें जो ऑनलाइन की समस्या है, बैंकिंग में हो, एजुकेशन में हो, या ग्रामीण विकास, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, तो हमने वो नेटवर्क किया। कोविड के दिन भी हमारे गांव में मोर देन 700 फार्म लेबर्स आउटसाइड से हमारे गांव में काम कर रहे थे, लेकिन वो किसान से दूर, उनको क्वारंटाइन भी, वह काम कर गए, उनका मील भी वहां होगा, कुकिंग विकिंग सब, उसके कारण कोई समस्या नहीं आई। और फ्रंटलाइन टीम पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस आज भी काम कर रही है, इसलिए कोविड में भी कोई समस्या नहीं। इसलिए हमें जो प्रयास करना है फ्यूचर में, तो प्रयास यही है, नेशन फर्स्ट, विलेज फर्स्ट, रिसोर्सेस। क्योंकि हमने अभी तो आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे, क्या आजादी मिल गई, पर कैपिटा 5000 लीटर पर हेड क्यूबिक मीटर पानी हमारे हाथ में था, और आज 1007Sir is facing some technical issues again. We'll try to resolve it as soon as possible. Please stay tuned and we'll continue again in a couple of minutes.
हेलो यस सर, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है, हाँ अभी बोलिए। क्या है कि मुझे लगता है थोड़ा टॉक बंद करके हम जरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ ठीक है, चलेगा सर। हाँ, एक और कितना टाइम है? सर, और 10-15 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर ओके करेंगे सर ओके, हम। ठीक है, चलेगा। हाँ सो या सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर अमेजिंग स्पीच। काफ़ी एनलाइटिंग था इन मेनी एस्पेक्ट्स। काफ़ी चीज़ें और टेक्निक्स जो जो हम शहरों में रहने वालों को मालूम नहीं है, उस पर आपने उसका आपने काफ़ी अच्छे से वर्णन किया। तो काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस रहेंगे, तो वील स्ट्रेट मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर। If the audience has any questions to be addressed towards sir, they can put it up in the chat box. ओके। हेलो हेलो। Yes sir. हमारे प्रोफेसर है जावेद पटेल सर, उन्होंने आपके लिए पूछा है कि डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो आपने काफ़ी अच्छे तरह से आप डिसिप्लिन मेंटेन किया है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सर, आपने एक पूरे गांव को डिसिप्लिन सिखाने का आदर्श दिया है, तो हमारे भी विद्यार्थियों को कुछ आदर्श देना चाहेंगे आप? नहीं, कैसा है कि देखो हमारे देश में तो विजन 2020 की बात एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने की थी। जब 2004 में वो प्रेसिडेंट रहे, तभी उन्होंने अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले 50 लोगों को डिनर के लिए इनवाइट किया, तो उसमें मैं भी एक था। आज 2 बार उनका ह्यूरे बाजार विजिट का प्लान हुआ था, लेकिन हमारा भाग्य नहीं था, कोई ह्यूरे बाजार आके गए। हमारे देश में तो प्रेरणा की कमी नहीं है, लेकिन खाली प्रेरणा की जयंती पुण्यतिथि तक ही हम सीमित थे। उनके जो आदर्श है वो हम ग्राउंड रियलिटीज में नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि आदर्शों को खाली पूजा में रखना नहीं है, तो आदर्शों को जीना चाहिए। तो ह्यूरे बाजार एक ऐसा गांव है कि जहां एक भी स्टैच्यू नहीं है गांव में, स्टैच्यू फ्री विलेज है, और कोई आदर्शों के जयंती पुण्यतिथि सेलिब्रेशन नहीं करते। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी हो, या अहिल्यादेवी होळकर जी हो, या राष्ट्र संत वंदनीय तुकडोजी महाराज हो, या गाडगे बाबा हो, या महात्मा ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई जी हो, या अन्ना साहब साठे हो, जो कोई भी, तो हम आदर्शों को जीते हैं। और सोशल हार्मोनी, क्योंकि हमारे गांव में एकमात्र मुस्लिम फैमिली, मस्जिद लोकल विलेज कंट्रीब्यूशन से बन गई, किसी आउटसाइड से नहीं। जो बुद्ध धाम बन गया, जो अवार्ड मिल गया, उसमें से बन गया। नीड बेस्ड प्लान है हमारा, कास्ट बेस्ड नहीं है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया में समस्या है। हम पानी के हालात देख रहे हैं, एनवायरमेंट की सिचुएशन देख रहे हैं, और इंडिया में तो अभी फेस कर रहे हैं हम। तो इसलिए हमें जो प्रयास करना है फ्यूचर में, तो 2020 का जो यूथ है, ये यूथ ही कल का हमारा पारिवारिक भविष्य है, गांव का भविष्य है, देश का भविष्य है। और आजादी की लड़ाई लड़ी वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खान, शिरीष कुमार तो 12-14 साल की उम्र थी, तिरंगा हाथ में लिया, सीने पे गोलियां ली उसने। तो आजादी की लड़ाई घर परिवार से लड़ी करके गुलामी चली गई, हम आजाद हो गए। आज दूसरी आजादी की लड़ाई हमें लड़नी, करप्शन, व्यसनाधीनता। क्योंकि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में ही हमारी कोऑपरेटिव मूवमेंट और हमारी शुगर इंडस्ट्री हमारा बैकबोन था डेवलपमेंट का। आज शुगर इंडस्ट्री डिपेंड है लिकर इंडस्ट्री पे,
और लीकर इंडस्ट्री अगर मेन सोर्स बनेगा हमारा गवर्नमेंट का इनकम का, तो देखो हमारा यूथ का फ्यूचर कैसा होगा। दुर्भाग्य है अंग्रेज तो हमारे देश में आ गए। अंग्रेजों ने शराब कितनी पीनी है, कब पीनी है और कैसी पीनी है ये सिखाया नहीं। खाली इतना ही गांव में ग्राम सभा में लड़ाई करनी है, शराब पिला के किसी को छोड़ दो। बांध के ऊपर लड़ाई है, शराब पिला दो। वन पेग इज मेडिसिन। आर्मी में तो शराब दी जाती है हमारे आर्मी में इसको, लेकिन हमारे गांव-गांव में आज जो हालात बिगड़ गई है, एक तो शराब तो नशा राम राज्य और महाभारत में भी थी, देव देवताओं के जमाने में थी, लेकिन उस वक्त देव और राक्षस ये दोनों था, पॉजिटिव नेगेटिव। आज भी वही है, लेकिन खुशी हो गई तो शराब पीने की सेलिब्रेशन, और दुख हुआ तो सेलिब्रेशन। और खुशी के मौके क्या है? जॉब मिल गया, अच्छा पैकेज मिल गया, शादी तो एंगेजमेंट हो गई, बर्थडे आ गया, ये खुशी के मौके। और सेलिब्रेशन क्या है? शराब। 5th तक के बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं शादी किसकी है गांव में, डीजे कहाँ बज रहा, जयंती पुण्यतिथि का है, कलेक्शन, डीजे, सेलिब्रेशन। अगर ये ट्रैक पे यूथ जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 16 to 35 मोर देन 68% यूथ है, जो कि चाइना हो, जापान हो, यूरोपियन कंट्रीज है, वो मोर देन 65 है। दुनिया को खड़े करने की ताकत हमारे यूथ में। लेकिन अगर ये यूथ व्यसनाधीन हो गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आज इतना ही कहूंगा कि आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारा गांव खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल इंडिया। जो ड्रीम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, शहरों की सुविधा गांव में देनी, लेकिन हमने शहरों में नहीं इतनी अच्छी सुविधा हमारे गांव में दी। क्लीन, शो मी वन मॉस्किटो, टेक 100 रुपीज, एक मच्छर दिखाओ 100 रुपए ले लो। 92 को ही हमने घर घर में टॉयलेट बनवाए थे, शोपीस बनाए थे, ओपन ड्रेनेज नहीं है, इसलिए 99% हेल्थ प्रॉब्लम खत्म हो गई। और आज प्रयास कर रहे हैं पिछले 5 साल से किचन फॉर हेल्थ। कोविड ने सिखाया हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। हमारा किचन, अभी किचन क्या है? जैसा यूरोपियन कंट्रीज का किचन नहीं है, जो डिजाइन होता है मकान का किचन फ्री, उनका किचन में यानी कि उनका फ्रिज है। और दुनिया में सबसे ज्यादा किचन वेस्ट, फूड वेस्ट जो होता है वो अमेरिका में होता है, क्योंकि फ्रिज। तो आज हम भी वो ट्रैक पे जा रहे हैं, यूरोपियन कल्चर अडॉप्ट करके हम भी फ्रिज कल्चर पे जा रहे हैं, और इसके कारण समस्या शुरू हो गई। तो हमने गांव में जो पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, ग्रीनरी आ गई, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो पलायन करके शहर गए थे वो वापस गांव में आ गए, और आज कोई समस्या गांव में नहीं, गरीबी कम हो गई, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, पुलिस वाला नहीं, लड़कियां सबसे सुरक्षित है। तो देखो ये प्लान हमें करना बहुत जरूरी है। इसलिए अमृत महोत्सव अभी रिसेंटली में जो यूपीएससी की 96 बैच के सामने टॉक के लिए गया था मसूरी, हमारे देश का जो आईएएस अकादमी है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी देहरादून मसूरी में 95 में पहला टॉक दिया था मैं। हर बैच के लिए जाना का मौका मिलता है, और अभी 6 और 7 दिसंबर को मैं मसूरी था। वहां जब टॉक थी करीबन 2 दिन रहा मैं। पहले दिन जो उनके करीबन 12 ग्रुप से अलग अलग थीम के, तो 6 ग्रुप के सामने बात किया। सेकंड डे को डायरेक्टर साहब और ज्वाइंट डायरेक्टर मैम ने कहा कि टोटल ग्रुप के सामने आप बात करो। फिर 861 यूपीएससी स्टूडेंट थे। वहां मैंने इतना ही कहा
कि अभी चलो आपका मकसद पूरा हुआ, आप IAS, IPS, IRS बन गए, IFS बन गए, अभी आपका तो भविष्य बन गया है, करियर भी बन गया है, परिवार का फ्यूचर बन गया, लेकिन समाज और गांव और देश का फ्यूचर बनाना है, वो आपके हाथ में। जो 4 खंबे हमारे डेमोक्रेसी के, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन, लॉ, जस्टिस, तो प्रेस, तो आप मेन खंबा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको देश की गरीबी कम करना है, एनवायरमेंट का बैलेंस करना है, पानी की समस्या का हल ढूंढना है, पलायन यानी माइग्रेशन रोकना है। क्योंकि गांधी जी ने क्यों कहा था गांव की ओर चलो, अगर सारी सुविधा गांव में होगी तो लोग गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो शहर सुरक्षित होंगे। आज के हालात क्या है, आजादी मिल गई, 75% लोग गांव में थे, या 70%, 30 या 25 शहर में थे, अभी सारे सिटीज के आउटलेट ब्लॉक कर दिए आपने। देखा हमने केरला में क्या हुआ, चेन्नई में क्या हुआ, बेंगलोर में क्या हुआ, कोल्हापुर में क्या हुआ, सांगली, सातारा, पुणे में क्या हुआ, और मुंबई में क्या हुआ। मीठी नदी मुंबई की ब्लॉक कर दिया आउटलेट, क्योंकि पहले से ज्यादा पलायन शहर में हो गया और सिटीज की कैपेसिटी खत्म हो गई। आगे गांव कुछ फैसिलिटीज नहीं, सुविधा नहीं करके माइग्रेशन, और शहरों में ये ओरिजिनल सिटी और स्लम, ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी थी। हर सिटी महाराष्ट्र की अभी स्लम में कन्वर्ट हो गई, पुणे, सांगली, सातारा, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती। तो हमने ये करना है कि हुरे बाजार में 70 फैमिलीज जो ठाणे, मुंबई, पुणे से वापस गांव में आ गए, तो हर गांव में अगर यूथ खुद का फ्यूचर देखो, मैं देख रहा हूं कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी अभी सुबह आ गए थे, का जो अमेरिका में बहुत बड़ा, उनके साथ 30,000 वर्कर्स है, वो गांव में आए थे सुबह, उनकी वाइफ, वो दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत बड़ी कंपनी उनकी, वो अभी गांव में काम करना चाहते हैं। बहुत बड़ी हसिया हिवरे बाजार में आके गई, हमें करना है। एक तो US से आए थे, वो हर साल मोर देन 500 करोड़ रुपीज महाराष्ट्र में उनके इनकम में से ड्राउट के ऊपर इंडिया में खर्च करते, वो मेरे गांव में आए थे। कैसा करना, स्वामी रामदेव जी बाबा ने हरिद्वार बुलाया था 2 बार, पोपटराव जी पतंजलि बैनर के नीचे आप 100 विलेजेस का निर्माण करो इंडिया में, 100 करोड़ आपके NGO को देते हैं। लेकिन मैंने कहा स्वामी जी, एक गांव में आदमी थक जाता है, इतना आसान है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विलेज लेवल पे। आफ्टर 35 years यूनानिमस इलेक्शन था, और लास्ट ईयर विलेज पंचायत का इलेक्शन हुआ हिवरे बाजार का, और पहला विलेज पंचायत है हिवरे बाजार, जिसके लिए इंटरनेशनल मीडिया आ गई थी इलेक्शन के रिपोर्टिंग करने के लिए। इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि एक गांव इंटरनेशनल बन गया, ग्लोबल बन गया, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इतना काम किया, फिर इलेक्शन क्यों होगा। लेकिन हमारा इलेक्शन भी अच्छा ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने वाला, जीरो बजट, पैसा नहीं, शराब नहीं, नशे नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, क्योंकि हमारी राजनीति इलेक्शन डेमोक्रेसी की पावर है। लेकिन डिवाइड एंड रोल, ये जो अंग्रेजों का कल्चर है, इसके कारण गांव और विलेजेस की हालत खराब हो गई। मैं इतना ही कहूंगा, आप भी कर सकते हैं। आज इंडिया के कई भी कौन से भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख, 3 फेज का पंचायती राज हिवरे बाजार बेस पे हुआ। फर्स्ट टाइम लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू विलेज पंचायत का मॉडल तैयार हुआ। उस वक्त आर्मी ऑफिसर उनकी टीम हिवरे बाजार लेके आते थे। अभी अभी लास्ट मंथ में ही स्नो ज्यादा बर्फ गिरी हो गई करके प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ। कारगिल जाने वाला था मैं, कारगिल में 7 दिन का प्रोग्राम रखा था, आर्मी, लोकल सिस्टम, विलेज पंचायत और मेरा खुद का अनुभव रखना था। क्योंकि जो NDC है दिल्ली में, नेशनल डिफेंस कॉलेज, वहां भी टॉक के लिए मुझे इनवाइट किया जाता है। बॉर्डर विलेजेस पे आर्मी ने किस तरह से काम करना है, जो एक्सपर्ट है
वो गांव में आ जाते। तो इस तरह से एनडी शिकाकर्मा 32 कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल हिवरे बाजार आके गए। अभी सिंह साहब जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल है। इसलिए मैं ये कर रहा हूं कि मैंने जो 30 साल का अनुभव किया, या अभी 2 इयर्स 2 साल का मॉडल बन गया और इसमें काफी अच्छी मूवमेंट अभी बन रही। तो मैं यूथ और सारे, मैं तो यूपीएससी में देखता हूँ, एक तो ज्यादातर इंजीनियर और डॉक्टर ही आ जाते हैं, और जब वो इंजीनियर आईएएस आईपीएस बनते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल देखे बहुत बढ़िया, जैसा महेश भागवत जी खुद इंजीनियर है, एक एनजीओ में काम करते थे, हिवरे बाजार आ गए, ज्ञान को अप्रूव देने में उन्हें एक किया, मेंस पास हो गए तो हिवरे बाजार आ गए। अभी वो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा रोल उनका होता है। तो ऐसे कई आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस, आदरणीय ज्ञानेश्वर मूले साहब जो फॉरेन अफेयर सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी काफी अच्छी मूवमेंट चलाई। इससे बच्चों, आपका फ्यूचर बनाना है तो इस देश का भी फ्यूचर, फीलिंग ऑफ ओनरशिप और रिसोर्सेस के साथ हमें मिलके काम करना है। अगर रिसोर्सेस का ऐसा ही शोषण हम करेंगे, हम सबका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। इसलिए तिबेट की लैंड, आखिरी 1-2 मिनट में मैं मेरा टॉक खत्म कर देता हूं। पूरी एशियन कंट्री आज प्रॉब्लम में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तिबेट, भूटान और चाइना, सभी का वाटर सोर्स तिबेट के लैंड है, यानी कि मानसरोवर है, यानी कि कैलाश है। अगर हिमालयन रेंज ने ऐसी हालात रही तो फ्यूचर एशियन कंट्रीज का खतरे में आता है। मेरा सौभाग्य, मुझे कैलाश मानसरोवर जाने का मौका मिला, मानसरोवर में नहा लिया। सारे एशियन कंट्रीज का सोर्स वही से। अब भगवान शिव जी ने जटाओं में गंगा जी को समा लिया, वो भी कैलाश पर्वत है। तो देखो, पानी की समस्या सदियों से आज नहीं, भगवान शिव जी ने जटाओं में गंगा जी को लिया। ये तो हमारा कल्चर है इंडिया का। पानी, जल पूजा, सिंहस्थ कुंभ मेला, ये दुनिया के लिए मैसेज है कि इंडिया ये पानी की पूजा करने वाला, पवित्र पुण्य कर्म मानने वाला देश है। और आज हमारे देश में मोर देन 40,000 करोड़ रुपीज जो पानी का बिजनेस चल रहा है। अगर पानी मनी मेकिंग बिजनेस हो गया तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? इसे पानी एक पुण्य कर्म है। तो हमारे यूथ ने, किसी भी सेक्टर में आप जाओ, कॉलेज पास आउट होने के बाद, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन, आज हमारे देश में भी अच्छे पॉलिटिशियंस है, अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे किसी पार्टी से रिलेटेड हो, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें भी ऐसा प्रयास करना है सबको मिलके, क्योंकि अभी आगे आने वाले 25 साल जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करेंगे, तब समाज हमें पूछेगा कि बच्चों, आपने देश के लिए क्या दिया, नेचर के लिए क्या दिया, गांव के लिए क्या दिया। जो हमारी पॉलिटिक्स है, अभी देखो कि पार्टी फंड, ये हमारे प्रोजेक्ट पीरियड की और प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्शन खर्चा 30 साल पहले तो पैसा नहीं लगता था, विधायक, एमएलए, एमपी। अभी 50 करोड़ रुपए एमपी बनना है, 2 या 4, 10 करोड़ रुपए एमएलए बनने के लिए, क्योंकि हमारी वोट बैंक बिल्कुल विजन नहीं रहा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी खत्म हो गई। हम 2020 का So we'll be back again soon.
हेलो। Yes, sir, you're audible. हाँ, कुछ नहीं, आखिर में इतना ही कंक्लूड में मैं कहूंगा कि जब 72 के ड्राउट में हमें फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च हो गई। अभी भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी लॉन्च हो गई और ग्रीन रिवोल्यूशन आ गए हमारे कंट्री में, और पंजाब की मिट्टी ने पूरी इंडिया की फूड सिक्योरिटी दे दी। आजादी के 75 इयर्स के बाद अब पंजाब में क्या हुआ है, 500 फीट जाने के बाद पानी मिलता है, सॉइल हेल्थ खराब हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन लेवल 20-30% तक आ गई कि जो मोर देन 1% होनी चाहिए, डाउन हो गई। और क्या हुआ, जिस पंजाब के मिट्टी ने हमारे देश को बहुत बड़े रेसलर दिए, हेल्दी पंजाब था, अभी घर घर में नशा आ गई, उड़ता पंजाब फिल्म आ गई। क्यों हो गया? अगर आमदनी बढ़ जाती है तो नशे की ओर ट्रैक जाता है हमारा। डाइट प्लान हमारा क्यों खराब होता है? तो हमारे इंडिया में सबसे खराब सिचुएशन है पानी और सॉइल हेल्थ की पंजाब में। इससे हमने ह्योरे बाजार में सॉइल हेल्थ, सॉइल लॉसेस, ऑर्गेनिक कार्बन, क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। और डाइट प्लान हमारा ऐसा है, अभी 1 जनवरी 23 में एक भी परिवार से कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। हर डाले बाघ भट्ट जी ने 3500 साल पहले हमारा डाइट प्लान डिजाइन करके दिया। वेस्टर्न कंट्रीज ने अडॉप्ट किया, लेकिन हमारा डाइट प्लान वेस्टर्न हो गया, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी क्या है उसके आधार पर हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, हमारा डाइट सिस्टम और हमारे त्योहार डिजाइन होने जरूरी थे। वो थे लास्ट 10,000 ईयर से ऋषि और मुनियों ने हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिजाइन किया था। 27 नक्षत्र और 12 राशि, 12 राशि और 27 नक्षत्र, और हमारे सन और उत्सवों में उनको लिंक किया था। वो हमारी यूनिवर्सिटी थी। इससे ये भारत दुनिया में जो विश्व कल्पना ग्लोबल फैमिली का मैसेज देता है, तो इसके ऊपर काम करना है। धन्यवाद राहुल जी, और आप सभी ने सुन लिया, धन्यवाद जी सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेक्टेकुलर प्रेजेंटेशन। आपने काफ़ी अच्छी स्मार्ट आइडियाज़ बताई हमें, जिससे जैसे कि 5 सूत्र हो या फिर कई और आइडियाज़, काफ़ी कमेंडेबल। हमारे स्टूडेंट्स भाग्यशाली है कि हमें आपका ज्ञान प्राप्त हुआ। राहुल जस्ट 1 मिनट, एक यस सर, यस सर। कि हमने देखो अभी 75 इयर्स हमने अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि सामने सब यूथ है। अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर हर स्टेट में अगर एक जीआर निकलता है दिल्ली से और सरकार केंद्र की कहती है कि 12,000 रुपए में टॉयलेट बनाओ, जहां सरफेस रॉक है वहां भी 12,000, जहां डीप सॉइल है वहां भी 12,000। और हमने देखा 4 कानून भारत सरकार को वापस लेने पड़े। तो यूथ को मैं विनती करूंगा, अध्ययन करो, स्टडी करो। पंजाब की सिचुएशन अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, केरला की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है। एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इसके ऊपर कॉमन एजेंडा पॉलिटिकल बनना बहुत जरूरी। अगर कॉमन एजेंडा नहीं बनेगा, देखो आज बीजेपी की सरकार दिल्ली, कल कांग्रेस की आ गई, और फिर कांग्रेस ने कोई डिसीजन लिया रिफॉर्म्स के, तो अपोजिशन क्या कहेगा? ये किसानों के खिलाफ है, ये सिटीज के खिलाफ है, ये ग्रामीण के खिलाफ है। तो युवाओं को मैं आपको इतना ही विनती करूंगा कि आप अध्ययन करो। हमारी डेमोक्रेसी की देवता है हमारी राज्यसभा और लोकसभा।
वो जब पारित करती है ना कोई भी बिल और बाद में रिटर्न लेना पड़ता है, तो हमारे सारे जो डेमोक्रेसी का जो मंदिर है उसका वो अपमान होगा। इसलिए फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं, चाइना और पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी समस्या हमारे देश में। इसलिए यूथ उसका एजेंडा खाली पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, वो नेचर, नेशन और कम्युनिटी ये होना चाहिए। बस, धन्यवाद। और आइए विजिट करें, क्रॉस चेकिंग करो हमें, और आप अगर लीडरशिप दे देंगे जहां कहीं, बिल्कुल आपको मदद करूंगा, क्योंकि मैं मंथली मोर देन 5000 किलोमीटर टूरिंग है मेरा, और पिछले 30 साल में 15 लाख किलोमीटर मेरा टूरिंग है, किलोमीटर मेरे रिकॉर्ड में, और मंथली 3 या 4 स्टेट में जाता हूं मैं। कोविड के कारण थोड़ा रुका हूं। अब तय किया है, चलो किसी ने ये बनाने का मौका दिया है तो समाज और देश के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है। धन्यवाद। जरूर सर, कुछ साल और हम शहरों से गांवों की तरफ बढ़ पड़ेंगे। कई कुछ सालों का ही रह रहा है। एक निस्वार्थ चीज जो मुझे आपके पूरे स्पीच में सबसे अच्छी लगी, जो आपने कहा कि परिवार वालों ने कहा कि खुद का करियर देखो, गांव का करियर छोड़ दो। आप आसानी से आपकी लाइफ पर फिर से जा सकते थे, पर लेकिन आपने अपने गांव में विकास की जरूरत को समझा और एक ऐसी राह पर चल पड़े जहां आपको कई लोगों ने और साथ दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा आज की ऑडियंस से कि अगर तुम किसी चीज पे विश्वास रखते हो तो जरूर उसके पीछे जाना चाहिए, ओके भले के लिए हो वो, तो जरूर उसके पीछे रहना चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू द सैक्रिफाइस सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। I would like to call the chairperson of IEEE VIT, Ms. Shefali Wala, to present the vote of thanks to sir. थैंक यू राहुल। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय लेके आप इस इवेंट पे आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू ऑल अदर्स, आई एम श्योर दैट द नॉलेज दैट यू हैव imparted today, sir, will be instrumental in becoming individuals that give back to the society. I, on behalf of the committee IEEE VIT, thank the entire audience for attending the webinar and hope that you all have benefited from this experience. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling months ago. We are fortunate to have dedicated student volunteers that work tirelessly so that IEEE VIT can bring in more events like these. Lastly, I would request the audience to please fill up the feedback forms so that we can dispatch your certificates soon. We would be happy to hear any suggestions that come in. With this, thank you so much for attending. We hope to see you in the remaining days of IRIS. With this, have a great day ahead. Thank you so much. Thank you so much everyone for being a lovely audience today. We will be back tomorrow with our second session with Mr. Abhijit Yadav, who has cracked UPSC CSE twice, and we'll be looking forward for seeing you guys tomorrow as well. Do fill out your details correctly in the feedback form, as they will be reflected in your certificate. And that brings us to end of today's session. Until next time, this is Rahul Pawar signing off. Take care, stay safe. You can start leaving now. Thank you so much.